आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने राजेंद्र नगर हल्के असम्बली आउटर रिंग रोड के दूसरे मरहले के कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि हैदराबाद के अतराफ के इलाका जात नारसिंगी, महेश्वरम, मनीकुंडा, इब्राहिमपट्टनम, शमशाबाद और दीगर इलाका जात में अब यहाँ की अवाम को पीने के पानी का मसला दरपेश नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में रोज़ाना 600 मिलियन गैलन पानी सरबराह किया जाता है। उसको 2025 तक 2000 मिलियन गैलन तक पहुंचाने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क की आज़ादी के बाद से चले आने वाले मसाइल को सिर्फ 7 साल में हल करते हुए रियासत और ग्रेटर हैदराबाद की अवाम को 24 घंटे बरखी सरबराह और मिशन भगीरथा के तहत हर घर को पीने के पानी सरबराह करने के इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में शुरू होने वाला कोई भी तरक्याती प्रोग्राम मुल्क भर में बाद में शुरू किया जा रहा है, जिसकी मिसाल तेलंगाना में शुरू की गई। रैतु बंधु स्कीम आज मुल्क की दीगर 11 रियासतों में चलाई जाने की इत्तलात हैं। उसी तरह शाहराहों की तामीर, चाहे आउटर रिंग रोड हो या फ्लाईओवर ब्रिजेस हो, मुल्क भर में तेलंगाना सर फहरिस्त है। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हैदराबाद में 14 करोड़ की लागत से 3000 मकानात को पानी सरबराह करने के इक़दाम किए जाएंगे। ప్రాజెక్ట్ వలన వేదిక మీదకి వస్తున్నటువంటి అతిథులకి ఎవరెవరు ఆ బొకేస్ కానీ ఈ మొక్కలు కానీ ఇచ్చేయడానికి వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ మేము కోరుతున్నాము. శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చాలా దిగ్విజయంగా జరిగింది గౌరవ మంత్రివర్యుల చేతుల మీదుగా. ఒక వ్యూహం ప్రకారం ముందు ప్రజల కనీస అవసరాలు, కనీస మౌలిక వసతులు వాటిని తీర్చాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంటదనే విషయాన్ని వారు మొదటి రోజున చెప్పడంతో పాటుగా గత 7.5 సంవత్సరాలుగా అడుగడుగున ప్రజల కనీస అవసరాలు ఏవైతున్నాయో వాటికి అనుగుణంగానే వారు తన కార్యాచరణ రూపొందించుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు భారతదేశానికే, భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్న ఎన్నో కార్యక్రమాలకు తెలంగాణ అనే వేదిక అయింది అంటే దానికి కారణం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి యొక్క ముందు చూపు అని చెప్పక తప్పదు. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం హర్ ఘర్ కో జల్ అని చెప్పి ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నది. ఇందాక ఎంపీ గారు కూడా చెప్పినారు. ఆ కార్యక్రమానికి స్ఫూర్తి ఏది అంటే మన రాష్ట్రంలో మనం అమలు చేసిన మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం. అదే పద్ధతుల్లో 1-2 కాదు, ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు. ఒకప్పుడు అనేవారు వాట్ బెంగాల్ డస్ టుడే ఇండియా డస్ టుమారో, అంటే ఈ రోజు బెంగాల్లో జరిగేది రేపు దేశంలో అమలవుతుంది అని చెప్పి గతంలో ఒకప్పుడు నానుడి ఉండేది. కానీ ఈ రోజు నానుడి ఏంటంటే భారతదేశంలో నడుస్తున్న వ్యవహారం ఏంటంటే తెలంగాణలో ఈ రోజు అమలవుతున్న పథకాలు భారతదేశంలో రేపంతా అమలవుతాయనే మాట. ఇది వాస్తవం. ఎందుకంటే ఒక రైతు బంధు మనం ప్రారంభించిన తర్వాతనే దేశంలోని 11 రాష్ట్రాలు మన నుంచి స్ఫూర్తి పొంది వాళ్ళు ప్రారంభించారు. తర్వాత ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా ఆ కార్యక్రమం నుంచి PM కిసాన్ అనే పేరిట వారు కూడా దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించినారు. అట్లా ఒకటి కాదు, ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి చెప్పుకుంటూ పోతే. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు మంత్రివర్గంలో కానీ, శాసనసభ సమావేశాల్లో కానీ, మంత్రివర్గ సమావేశాల్లో కానీ, శాసనసభ సమావేశాల్లో కానీ ఎప్పుడూ చెప్పే మాట, నేల విడిచి సాము చేయకండి, ప్రజలకు ఏం కావాలనో కనీస అవసరాలు ముందవి చూడండి. అందుకే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వెంటనే పరిష్కరించిన మొట్టమొదటి సమస్య కరెంటు సమస్య. సరే, ఇవాళ మణికొండలో, అల్కాపురిలో మీరు కరెంట్ रियासती वजीर इराबली दयाकर राव ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान के बैंक अकाउंट में रास्त 10 लाख रुपए जमा करवाएं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर हर असम्बली हल्के से 100 दलित खानदानों को 10 लाख रुपए की माली मुनफियत फराहम की जा रही है। आज जनगांव कलेक्ट्रेट में ZPD के इजलास से खिताब करते हुए इराबली दयाकर राव ने बताया कि हल्के असम्बली घनपुर में 24,209 दलित खानदानों की निशानदेही की गई है। इस तरह पूरी रियासत के दलित खानदानों की निशानदेही का काम तेजी से जारी है। वजीर पंचायत राज ने ओहदेदारों को मुतब्बना किया कि दलित बंधु स्कीम की अमली आवर में लापरवाही न करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इजलास में साबिक नायब वज़रा
वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरी, डॉक्टर डी राजया के अलावा अराकिन मकन्ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दीगर अरकान मौजूद थे। कबल अज़ीम वज़ीर पंचायत राज ने मुत्तहिदा ज़िले वरंगल में TRS पार्टी दफ्तर का मुआयना किया, जिसका अनकरीब सदर TRS व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इफ्तिताह करने वाले हैं। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक्किदा तकरीब को मुखातिब करते हुए वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव से हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पानी की सरबराही को मुमकिन बनाने के लिए फंड जारी करने पर इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि हैदराबाद में तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत ने मौसम गर्मा में बरक़ी कटौती के मसले को हल करते हुए 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के इक़दाम किए। और अब वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की क़ियादत में अलकापुर टाउनशिप महेश्वरम नारसिंग में पीने के पानी के मसले को हल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकन असम्बली प्रकाश गौड़, रुकन कानून साज कौंसिल वाणी देवी, MD वाटर वर्क्स दाना किशोर और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। డెవలప్మెంట్ అయితే ఉందో, జనాభా ఏ విధంగా పెరుగుతా ఉందో, జనాభాకు అనుగుణంగా డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన. దాంట్లో భాగంగా జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాతో పాటు సరౌండింగ్ లో ఉన్న రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న ఏరియాతో పాటు HMD ఏరియాను కూడా బేస్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డైరెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఎవరి నియోజకవర్గం వాళ్ళు, ఎవరి జిల్లా వాళ్ళని మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు. ఇది అవకాశం ఉంది కాబట్టి మన నియోజకవర్గము, మన ఏరియా, మన లైన్ తీసుకోవాలని కాకుండా ఓవరాల్ గా 50 సంవత్సరాల వరకు మన హైదరాబాద్ సిటీలో డెవలప్మెంట్ బేస్ చేసుకుని డెవలప్మెంట్ చేపట్టాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ ఉంటారు. గతంలో కూడా మేము చాలాసార్లు వర్క్ చేస్తున్నాం, ఈ ప్రాంతంలో కూడా చూస్తున్నాం. మణికొండన లేకపోతే నార్సింగ్ లేకపోతే బండ్లగూడ కొన్ని నీళ్లు తీసుకురావాలంటే జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలు ఎక్కడి నుండి ఎట్లా ట్యాప్ చేయాలని చూసే వాళ్ళని తప్పిస్తే కెపాసిటీ ఏ విధంగా పెంచుకోవాలి, ఎట్లా చేయాలనే ఆలోచన గతంలో ఉండేది కాదు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దూరదృష్టికి నిదర్శనం. మన హైదరాబాద్ సంబంధించి ఒక రిజర్వాయర్ సపరేట్ గా పెట్టాలని, భవిష్యత్తులో ఎక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా హైదరాబాద్ కి మాత్రం ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండేటట్టు ప్లానింగ్ చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ ఉంటారు. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న మంత్రి గారు KTR గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే వారు పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ తో తీసుకుని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాతో పాటు రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న ఏరియాతో పాటు HMD ఏరియాలో ఉన్న సంబంధించిందంతా కూడా ఈరోజు ప్లానింగ్ వేసుకొని భవిష్యత్తులో వాటర్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఈరోజు 1200 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఆ విధంగా పరిష్కరించడానికి ప్లానింగ్ చేసిన మంత్రి గారి KTR గారు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. దాంతోపాటు హైదరాబాద్ కానీ హైదరాబాద్ సరౌండింగ్ అంతా కూడా ఒకటే ఏరియా బేస్ చేసుకుని డెవలప్మెంట్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనేది మీరందరూ చూస్తా ఉన్నారు. అంటే ఎక్కడైనా सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह असातिज़ा के 44,000 मखलूआ जायदादों पर फिलफौर तकर्रुरात करें। असातिज़ा की मखलूआ जायदादों के बाद रियासत का तालीमी निज़ाम इंतहाई कमज़ोर हो चुका है और तेलंगाना मुल्क भर में तालीम के मैदान में 18वें मुकाम पर पहुँच गया है। रियासत में 7 लाख B.Ed, D.Ed, B.Ed और BET और पंडित ट्रेन टीचर हुकूमत TET के इम्तिहान के इंतज़ार में है। ये TET इम्तिहान मुनक़द न होने से लाखों बेरोज़गार तरबियती नौजवान ज़हनी तनाव दबाव में हैं और माशी तौर पर हालात का मुकाबला करने से घबरा रहे हैं। इसके अलावा अक़लियती एडेड तालीमी इदारों में भी असातिज़ा की हज़ारों नशीस्तें खाली पड़ी हैं। बंडी संजय ने आज अपने एक सहाफ़ती बयान में हुकूमत से मुतालबा किया कि वह रियासत में तालीमी निज़ाम के इस्तेहकाम और तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए अमली इक़दाम करें और असातिज़ा के फिलफौर तकर्रुरात के ज़रिए तलबा के तालीमी साल को ज़ाय होने से बचाएँ। बंडी संजय वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की कि वो रियासत के तालीमी निज़ाम को सियासी हदबंदियों से आज़ाद करते हुए तलबा के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। रियासत भर में जारी फीवर सर्वे आज चौथे रोज में दाखिल हो गया।
महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक रियासत भर में तकरीबन 35 लाख अफराद का फीवर सर्वे किया गया, जिसमें से आज तक 1,78,000 अफराद कोरोना से मुतासिर पाने के बाद उन्हें कोरोना किट्स फराहम करते हुए घर पर रहकर इलाज करने की तरगीब दी गई। ग्रेटर हैदराबाद में 4 रोज से जारी फीवर सर्वे में 15 लाख मकानात का अहाता करते हुए सर्वे का आगाज किया गया, जिसमें ज़्यादातर हैदराबाद के स्लम इलाकों में मुकीम अफराद का फीवर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें इस बात का पता चला है कि हर 10 अफराद में से 2 या 3 अफराद में कोरोना की अलामतें पाई जा रही हैं। DHO अनुराधा ने बताया कि फीवर सर्वे में आशा वर्कर्स, GHMC वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं और सिर्फ बुखार आने पर दवाओं का किट और कोरोना की अलामत सामने आने पर कोरोना किट फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ये फीवर सर्वे 10 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि ग्रेटर हैदराबाद व अतराफ व कनाफ में फीवर सर्वे के दौरान 30,000 अफराद में कोरोना की अलामतें पाई गई हैं। वरंगल में फीवर सर्वे के चौथे रोज लक्ष्मीपुर, खाजीपेट और दीगर इलाकों में फीवर सर्वे किया गया। महकमे सेहत के अहदेदार और DHO ने बताया कि अब तक वरंगल, हनमकुंडा, खाजीपेट में 32,000 से ज्यादा अफराद का फीवर सर्वे किया गया, जिसमें से 6,000 अफराद में कोरोना की अलामतें पाई गई। उन्होंने बताया कि 350 टीमें फीवर सर्वे के लिए तश्कील दी गई हैं और हर टीम को 50 अफराद का मुआयना करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह सर्वे मजीद 4 दिन तक जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। तेलंगाना में TSAT के जरिए आज से 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस 28 जनवरी तक रहेंगी। क्लासेस आज से सुबह 10 बजे और TSAT से शाम 5 बजे तक दूरदर्शन यादगिरी चैनल के जरिए टेलीकास्ट की जाएंगी। हुकूमत ने पहले ही ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद का इनके इंतजाम कर लिए हैं। सरकारी स्कूलों में काम करने वाले तकरीबन 50% असातिज़ा को क्लास लेने के लिए कहा गया था। यह मालूम हुआ है कि हुकूमत की पहली और कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान तालीमी इदारों की बंदिश के बाद तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया। फिजिकल क्लासेस का आगाज़ 21 सितंबर को केस में कमी के साथ हुआ। छुट्टियों को छोड़कर 3 माह की मुद्दत के लिए क्लासेस का इनेकाद किया गया, ताहम केसेस में इजाफे की वजह से स्कूलों को एक बार फिर बंद कर दिया गया और तलबा को ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत में 31 जनवरी तक तालीमी इदारों को दोबारा खोलने की तैयारी कर रही है, अगर कोविड-19 मज़बूत मामला की रिपोर्ट में कमी वाक़ होती है तो। वज़ीर ने कहा कि इस साल ना तो इम्तिहानात मनसूख होंगे और ना ही तलबा को आला क्लासेस में तरक्की दी जाएगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीर को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के चेयरमैन CA पार्थसारथी को हैदराबाद के सेंट्रल क्राइम स्टेशन में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया। अहदेदारों ने पार्थसारथी को बेंगलुरु से हिरासत में लिया और हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। मालूम हुआ है कि पार्थसारथी ने सरमायाकारों के हसस को कंपनी के डिमिट अकाउंट में मुंतकिल किया है और उन पर बैंक कर्ज हासिल किया है। यह भी इल्ज़ाम था कि उसने रियल इस्टेट कंपनी में रकूम को डाइवर्ट किया हुआ है। इससे कबल ED ने मुलजिम के हसस को मुंजमद कर दिया था, जिसकी मालियत तकरीबन 700 करोड़ है। हुक्काम ने बताया कि मुलजिम ने 3,000 करोड़ का कर्ज हासिल किया, जिसमें से 1,096 करोड़ रुपए 2016 से 2019 के दरमियान रियल इस्टेट कंपनी को मुंतकिल किए गए। तहकीकात के दौरान ये भी पता चला कि कंपनी के सर्वर्स से फाइलें और ईमेल्स को डिलीट कर दिया। पार्थसारथी की हिदायत पर एंटी फ्रांजिक टूल्स इस्तेमाल किए गए। हुक्काम ने इससे कबल 6 कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों के महदूद मकामात पर भी तलाशी ली थी और कार्रवाई ग्रुप के हसस को मुंजमद कर दिया। कार्वी ग्रुप के हसस को मुंजमद कर दिया जो पार्थसारथी उनके बेटों रजत और अधीर राज पार्थसारथी के पास थे। ED जिसने तहकीकात मुकम्मल की हैं, अभी तक मालूमात का इंकशाफ नहीं किया है और इम्कान है कि पार्थसारथी को हिरासत में ले लिया जाएगा, जो चंचलगुड़ा जेल में था।
करीमनगर जिले के कोत्तापल्ली के मंडल चिंताकुंटा में इतवार की रात टाटा एस गाड़ी और कार के दरमियान टक्कर के नतीजे में 20 लोग जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासरीन वेमुलावाड़ा मंदिर में पूजा करके वापस आ रहे थे। हलाक शुदगान की शनाख्त मुलुगु और महबूबाबाद अजला के बाशिंदों के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि टाटा एस में तकरीबन 15 लोग सफर कर रहे थे और कार में 5 लोग सवार थे। राहगीरों ने वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। उन्होंने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। एक वहशियाना कत्ल गजवाका के गोपाला रेड्डी नगर में पेश आया, जहां 3 अफराद ने एक नौजवान को कर्ज की अदायगी न करने पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस और आईनी शाहिदीन के मुताबिक गोपाल रेड्डी नगर के 32 साल छत्र बोइना प्रसाद सिंगापुर में वेल्डर का काम करता था। उसे एक और हफ्ते में मुस्कत जाने का वीज़ा मिल गया। दरियासना प्रसाद ने हाल ही में अपने कजिन श्रीनु चिन्नया और पुतरा से 80,000 रुपये उधार लिए थे। उन पर अपना कर्ज अदा करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। वो पहले इसकी शिकायत पुलिस से की गई, जिसमें प्रसाद ने उसे वापस करने पर रजामंदी जाहिर की थी। ताम प्रसाद ने रकम अदा नहीं की। उसके तनाजुर में छोटे बहनों श्रीनु पर मजीद दबाव डाला गया और वो ये जान लें कि प्रसाद जो बैरून मुल्क से आया था दोबारा बैरून मुल्क जा रहा है। प्रसाद जो इतवार की शाम अपनी कॉलोनी के करीब एक गैर आबादी वाले इलाके में जा रहा था, उसे 3 अफराद ने काली मिर्ची, तलवार और लोहे की सलाखों से मार डाला। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दिया। क्लूज टीम को लाया गया और उंगलियों के निशानात लिए गए। मुलजिमान मकतूल के करीबी रिश्तेदार मालूम होते हैं। पुलिस को शुबा है कि कत्ल पर पुराने झगड़े की वजह से हुआ है। मुलजिम ने फौरी तौर पर थाने जाकर अपने हथियार डाल दिए। ऐसा लगता है कि पुलिस मुलजिम की दी गई इत्तला की बुनियाद पर जाए वकूफ पर पहुंची। गजवा का CI मल्लेश्वर राव ने कहा कि फिलहाल तहकीकात जारी हैं। मुतफी के वालिदीन और एक भाई हैं जो बैरून मुल्क काम करते हैं। ED-CP राज कमल ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात जमा की। हुकूमत और मुलाजिमीन के दरमियान PRC का तनाज़ा जारी है और आंध्र प्रदेश के मुलाजिमीन यूनियन ने पहले ही PRC इशूज़ पर जारी सरकारी GOs के खिलाफ एहतजाज के लिए अगले महीने की 7 तारीख से हड़ताल करने का फैसला किया है। मुलाजिमीन, असातिज़ा, कारकुनों और पेंशनर्स पर साधना कमेटी ने PRC मुश्तमिल हड़ताल पर मुत्तफ़िक़ करारदाद मंजूर की है। इस पस मंज़र में मुलाजिमीन पीर की दोपहर CS सुमीर शर्मा को नोटिस देने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब मुलाजिमीन यूनियन ने हुकूमत की जानिब से मुलाजिमीन से बातचीत के लिए कायम की गई आला सतही कमेटी में शिरकत से इनकार कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि बातचीत में तभी आएंगे जब GOs को ख़त्म किया जाए। दरियासना, जैसा कि आंध्र प्रदेश की हुकूमत जगन पहले ही तमाम यूनियनों के इत्तेहाद से बाज आ रही, इससे क़ियास आरायां की जा रही हैं कि तिब्बी अमला बाकायदा मुलाजमीन के साथ हड़ताल में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज एसोसिएशन की कॉल पर उनकी तहरीक की मुकम्मल हिमायत करती है। उन्होंने PRC GOs को ख़त्म करने और मज़ाकिरात के अख्ताम तक पुरानी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। ताहम यह देखना बाकी है कि मसला कैसे हल होगा, क्योंकि हुकूमत PRC पर अटल है और मुलाजिमीन अपने मुतालबे पर कायम हैं। एक हौलनाक वाक़े में बैंक मुलाजिम की बीवी ने इजाफी जहेज लाने पर हिरासा करने पर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक धर्मावरम के नेस्पेट का रहने वाला वेंकटा कृष्णा तादिमिरी ब्रांच में SBI बैंक में काम करता है। 2016 में उसने YSR कड़पा ज़िले के पुरुदुटूर से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े कोंडैया और गंगा देवी की बेटी वेंकटा सूजना से शादी की थी। शादी के दौरान सुजाना के वालिदिन ने उसे 18 लाख रुपए का जहेज और 300 ग्राम सोने के जेवरात पेश किए। जोड़े ने कुछ अरसे पुरअमन जिंदगी गुजारी और इनकी 2 बेटियां थीं। ताहम सोजना और वेंकटा कृष्णा के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसी पस मंजर में सोजना ने हफ्ते की आधी रात के बाद घर की 3री मंजिल पर फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने इतवार की सुबह जाए वकूअ का मुआयना किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए धर्मावरम सरकारी अस्पताल
अस्पताल मुंतकिल किया। दरियासना मुतवफ़ी के वालिदैन वेंकटा कृष्णन के ख़ानदान के अरकान के साथ बहस में पड़ गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसने इजाफी जहेज़ के लिए उन पर बेटी पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उसकी बेटी ने खुदकशी कर ली। इस सिलसिले में डीएसपी रमाकांत से शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुतवफ़ी के शौहर को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।